How are you? So, this is the very important class and this is a numerical based in a electric field. तो हम आज देखेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन पार्ट 2 और इस सेक्शन में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो या तो जे एडवांस में पूछे जा चुके हैं या एक्सपेक्टेड है कि जे एडवांस में पूछे जाएंगे. So let us see one by one question before starting at this lecture. Firstly, I want to introduce about me. This is the Vaishnavi online classes physics by Saurabh Sharma and this is me. If you have a more doubts related to the previous questions or today classes, the pings on my WhatsApp number. This is 8858980568. So now I'm very I know you are very excited, so let them start. सो बच्चों, कल मैं मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था. सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे जो जे एडवांस में पूछा जा चुका था. क्वेश्चन क्या था बेटा? फिगर शोज two spheres uniformly charged with a volume charge density rho and minus rho respectively. Their centers are at a separation A and the overlapping region is free of charge. Find the electric field strength at a general point P inside the overlapping region. So let us see. I want to draw again. So this is the one sphere which is positively charged and other one is नेगेटिवली चार्ज. और बेटा ये एक सेंटर लिया गया था C2 और एक सेंटर ये था C1 और C1 और C2 के बीच की सेपरेशन आपको A दिया गया है. ठीक है, अब क्या है, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया है. इस तरीके से मैं मान लेता हूं दिस इज चार्ज्ड पॉजिटिवली विद अ चार्ज डेंसिटी से रो और इसको बेटा नेगेटिवली चार्ज कर दिया गया है. तो इनका जहां ओवरलैपिंग रीजन है वहां न्यूट्रलाइजेशन है. दैट मीन्स देयर इज नो एनी चार्ज इज प्रेजेंट इन दिस सेशन. तो दिस इज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी माइनस रो. नाउ अगर मैं यहाँ पे कोई भी जनरल पॉइंट कंसिडर करता हूँ, से दिस पॉइंट इज P. ओके, अगर ये कोई पॉइंट P है तो इस पे आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. ठीक है, तो मैं फिर से वही क्वेश्चन सिमिलरली जैसे कल मैंने किया था आपकी प्रीवियस लेक्चर में कि ये मान लिया x डिस्टेंस है और ये C2 जो है y डिस्टेंस पे. सो एज वी नो the electric field strength inside a sphere, this E is rho x upon 3 epsilon naught. सो अगर ये मैं मान लूं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी से E1 और इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी से E2, तो मैं लिख सकता हूं जो E1 आने वाला है वो कितना आने वाला है. तो दिस इज रो x वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टोरली एंड E2 जो आने वाला है बेटा ध्यान से देखो वेक्टर, तो वेक्टर y इधर की तरफ है और E2 जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो दिस विल बी माइनस रो y वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, so net electric field is this E net is equal to this is Ex vector plus Ey vector. Now you can very easily solve this equations. So Ex is rho x vector upon 3 epsilon naught plus minus is minus रो y वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. सो यहां से बेटा आप देखो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लोगे तो दिस इज वेक्टर x माइनस वेक्टर y. सो अगेन ड्रॉ द वेक्टर्स. सो दिस इज अ वेक्टर x and this is a minus vector y. So this is the resultant at vector A. So the net electric field is rho A vector upon 3 epsilon naught. So this is again a uniform electric field and it's only depends on the separation between two charges. Okay, two centers. So now let me started a next question based on the numerical section part 2. So let us see.
let I started a next question, which is based on the numerical section part 2. So in this question is, an infinitely long solid cylinder of radius r has a uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis of the cylinder as shown. Find the magnitude of the electric field at the point P. What is a distance which is at a distance 2r from the axis of the cylinder. So this is the figure, and फिगर आपको दिया गया है इस तरीके से. तो मैं एक बार इलस्ट्रेट कर देता हूँ पूरे फिगर को. क्या दिया गया है बेटा? एक सिलेंडर दिया गया है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है. इसमें एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r/2 है. ठीक है ना. अब इससे P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. सो एज वी नो, electric field due to uniformly charged cylinder. तो E1 कितना आ जाएगा? तो E1 का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x. ओके, सो एट x इज इक्वल टू r बाई 2r पे. तो x इक्वल टू 2r पे जो E1 आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x इज 2r. सो दिस r से r कैंसिल आउट और रिजल्ट आ जाएगा रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट. So this is A1, and electric field due to uniformly charged cylinder, charged sphere. अगर स्फीयर की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं E2, तो वो कितना आ जाएगा? तो दिस इज KQ ओवर x स्क्वायर. सो एट x इज इक्वल टू r बाय 2r पर ये वैल्यू आ जाएगी E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर 4r स्क्वायर. अब बेटा मुझे चाहिए चार्ज, तो लेट अस सी चार्ज कितना होगा. तो E2 जो है वो आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इज से रो इंटू 4/3 पाई r by 2 का होल क्यूब, because the radius of the sphere is r by 2 divided by 4r square. So let us see this E2 is, आप देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. ये लिखेंगे रो r अपॉन 8 3 जा 24 इंटू 4. दिस इज 24 इंटू 4 इज, तो 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 प्लस 1 इज 96 एप्सिलॉन नॉट. ये आ जाएगा E2. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नेट इज, दिस इज E1 माइनस E2. तो यहां से लिखेंगे रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट. आफ्टर सॉल्विंग 96 एलसीएम लेंगे आप, तो इधर हो जाएगा 24 माइनस 1 इज 23 रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक field. So please, this is also a very easy question and based on the cavity concept. So let us see the next question, and such a very important question. This is the next question. The next question is, a uniform rod of AB of mass m and length L is hinged at its midpoint C as shown in the figure. The left part of the rod has a minus lambda and the right part of the rod has a plus lambda linear charge density, where lambda is a constant. A large non-conducting sheet of a uniform surface charge density sigma is also present near the rod. Initially the rod is kept perpendicular to the sheet. The end A of the rod is initially at a distance d. Now the rod is rotated by a small angle in the plane of the paper and released. Prove that the rod will perform a simple harmonic motion and find its period. ओके, सो लेट अस सी. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा. तो यार क्या दिया गया है? इस तरीके से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट दी गई है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई है कूलाम पर मीटर क्यूब. इससे क्या हो रहा है? एक इस तरीके का वायर रखा हुआ है यहां से
एक वायर है जिसकी एक डेंसिटी माइनस लैम्डा है और दूसरी प्लस लैम्डा है। अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, से सच लाइक दिस, मान लो इस तरीके से स्लाइटली डिस्प्लेस किया, अगर अब डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने के बाद एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कट करूं, तो एज वी नो कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस dx लेंथ पे, तो इधर एक फोर्स फील करेगा df, और अगर इसी तरीके से एक एलिमेंट्री सेक्शन इधर कट कर लिया जाए तो इसकी इस पे निगेटिव चार्ज होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा df। सो इस रॉड पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0। बट दीज फोर्सेस डज नॉट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ड्यू टू दिस रीजन इट जनरेट अ कपल, और इस कपल की वजह से ये इसको घुमा देगा। जैसे ये घूमेगा ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो इट्स अगेन रोटेटेड सच लाइक दिस। सो वी कैन से दैट इट्स परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ यू वांट टू डिस्प्लेस एंगल थीटा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके अगर ये थीटा एंगल है एक्स, अब मैं बोल रहा हूं अगर इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया गया है, सिमिलरली ये भी दूरी x है और इधर भी बेटा एंगल dx है, तो हम बोल सकते हैं कि यार जो dq होगा, चार्ज ऑन द एलिमेंट्री रॉड इज, दिस इज लैम्डा dx, और जो df लग रहा होगा वो लग रहा होगा dq इंटू e। सो दिस इज लैम्डा dx इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट करेगा। सो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एलिमेंट्री पार्ट, दिस टॉर्क इज डी टाउ इज, दिस इज df इंटू ये डिस्टेंस, अगर आप ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो दिस विल बी 2x sin theta. So we can put in here this is into 2x 2 sin theta into x. Okay, now we can solve this equations, put the values of df and tau. So d tau is, यहां से d tau बेटा आ जाएगा आपके पास, df निकाला तो this is sigma upon 2 epsilon naught into lambda dx into 2x sin theta. So let us see 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैं बोलूं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट थीटा, तो यहां से डी टाउ आ जाएगा आपके पास सिग्मा लैम्डा एप्सिलॉन नॉट इनटू थीटा एक्स डीएक्स। नाउ टोटल टॉर्क experienced by rod is, तो इस तरीके से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो टॉर्क इज टी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी टाउ, तो दिस इज सिग्मा लैम्डा थीटा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स डी थीटा इज इंटीग्रेशन, एंड लिमिट इज 0 to L/2. So this tau is sigma lambda theta upon epsilon naught into L square by 4. कैसे? x square by 2, oh sorry, this is d theta नहीं dx, I'm sorry, this is dx and this is also dx. So this is x dx is x square by 2, लिमिट रखेंगे L square by 4 आ जाएगा। तो यहाँ से टाउ जो निकल के आया बेटा, टाउ आपके पास निकल के आता है, दिस इज सिग्मा लैम्डा थीटा इनटू L स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सो एज वी नो जो टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क इज इक्वल टू नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो यहां से आई अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा लैम्डा L स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू थीटा। ओके नाउ दिस रॉड का जो ये हो जाएगा, दिस इज ml स्क्वायर बाई 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा लैम्डा L स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू थीटा। सो लेट अस सी L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 4 3 आ गया 12, और यहाँ से लैम्डा बराबर अल्फा बराबर आ गया, दिस इज 3 सिग्मा लैम्डा अपॉन m एप्सिलॉन नॉट इनटू थीटा। Okay, now this is 3 sigma lambda upon m epsilon naught. This is a अल्फा को कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर थीटा से। सो देयर इज अ लेक ऑफ स्पेस, सो आई वांट टू यूज अ नेक्स्ट पेज।
सो आपके पास बेटा अल्फा आया है 3 सिग्मा लैम्डा अपॉन एम अपसाइलन नॉट इंटू थीटा, जिसे कंपेयर कर सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ओवर 3 सिग्मा लैम्डा अपॉन एम अपसाइलन नॉट। सो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो दिस इज 2 पाई अंडर रूट ओवर एम अपसाइलन नॉट डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा लैम्डा। तो टाइम पीरियड इज 2 pi under root over m epsilon naught over 3 sigma lambda. This is your answer. So now the next question in this class is, so what is the next question is, the next question is a very good question and ask some concept based. So let us see. So let us see the next question. Such a very good question. Consider uniformly charged thin spherical shell as shown in the figure. Radius of the shell is r. The electric field at a point x comma 0 is E vector. What is the electric field at a point q minus x comma 0 0? गिवन x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन r। और आप देखो तो आपको एक बात बता रहा हूं, अगर मैं ये हेमिस्फीयर आपको दिया गया है, इसके p पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं कि E है, दिस इज x 0 इज E, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट q। तो अगर मैं कंप्लीट स्फीयर लूं, सो फॉर कंप्लीट स्फीयर अगर कंप्लीट स्फीयर लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट। अगर कंप्लीट स्फीयर ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू हेमिस्फीयर 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू हेमिस्फीयर 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है तो माइनस एक्स कॉमा 0, देन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q वो कितना है, दिस इज माइनस एक्स कॉमा 0, सो दिस इज ऑल्सो इज EQ is such as a important question. So let us see the next question, and this question is also a very good question. So what is the next question? So the next question in this class is, a semicircular ring of radius r carries a uniform linear charge density of lambda. P is a point in the plane of the ring at a distance r from the center O. OP is the perpendicular to AB. Find the electric field intensity at the point P. So एक बार ध्यान से देखते हैं यार अच्छे से, अगर ये R है ये भी R है, तो इस पूरी सर्किल को ऐसे बना लेते हैं डॉटेड लाइन से, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके से डॉटेड लाइन से बना दिया, एक पॉइंट P ए लिया गया है सच लाइक दिस, सेंटर ये है और इसको इस तरीके से चार्ज कर दिया गया है, ये बेटा सेंटर ले लेते हैं, और इसको ऐसे चार्ज कर दिया गया है, ये ऐसे चार्ज है कंप्लीटली, ठीक है ना, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दे दी। तो अगर मैं इससे थीटा एंगल पर एक डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन कट करूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी बेटा आर डी थीटा। तो चार्ज कितना निकलेगा, सो चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिंग, एक्चुअली द सेमी सर्कुलर रिंग, तो सेमी सर्कुलर रिंग है ये, सेमी सर्कुलर रिंग। सो डी क्यू जो आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, दिस इज लैम्डा आर डी थीटा। अच्छा, इस पी पॉइंट से ये जो एंगल होगा वो ध्यान से देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सो ये जो है मान लीजिए पी पॉइंट से फाई एंगल बना रहे, कितना एंगल बना रहे बेटा फाई, और इसका एलिमेंट्री पार्ट जो है वो पी पॉइंट से डी फाई एंगल बना रहे, ठीक है ना। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 2r है तो ये डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी,
ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास 2r cos थीटा. Okay, so electric field due to elementary part at point P is this d is k dq over x मतलब 2r cos थीटा का होल स्क्वायर. ओके, सो इस पूरे एलिमेंट्री सेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा वो इधर की तरफ आएगी. दिस इज डी. अगर ये एंगल बेटा आपके पास फाई है तो दिस एंगल इज ऑल्सो फाई और डी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा. दिस इज डी कॉस फाई और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा. दिस इज डी साइन फाई. सिमिलरली अगर इसी तरीके से आप सपोज करो अगर कोई सेक्शन यहां कट किया जाता इस तरफ थीटा एंगल पर, इसी तरीके से थीटा एंगल पर डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन का, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो किधर होती. तो अगर आपको मैं दिखाऊं अच्छे से तो ये फाई एंगल हो गया, फाई एंगल है डी फाई पर, तो इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाती. अगर ये फाई था तो ये भी फाई होता, तो इस डी और डी का एक कंपोनेंट इधर हो जाता, फिर डी कॉस फाई और इधर हो जाता डी साइन फाई. सो ध्यान से देखो कि अपर हाफ ऑफ द अपर क्वार्टर ऑफ द रिंग एंड लोअर क्वार्टर ऑफ द रिंग का डी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों वैनिश आउट हो जाएंगे. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ जाएगी. दिस इज डी कॉस थीटा. सो मैं लिख सकता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस ई नेट इज दिस इंटीग्रेशन ओवर डी cos theta. So put the value of d and this, तो E net बराबर कितना आ जाएगा. D की वैल्यू है k लैम्डा r d थीटा ओवर 4r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा. आई थिंक दिस इज cos phi होना चाहिए. सो दिस इज cos phi, दिस इज ऑल्सो cos phi एंड cos phi. सो इंटीग्रेट कर देते हैं. आप ध्यान से देखो तो एक cos phi से cos phi कैंसिल, r से r कैंसिल, तो इक्वेशन आ जाएगी दिस इज k लैम्डा ओवर 4r इंटू इंटीग्रेशन ओवर sec phi d थीटा. नाउ लिमिट इज व्हाट. तो लिमिट अगर आप ध्यान से देखो तो कितना बनेगा लिमिट, तो -π/4 से लेकर +π/4 तक. ठीक है ना. सो दिस विल बी -π/4 टू +π/4. ओके, अब मैं कर रहा हूं अगर ध्यान से देखा जाए लेट अगर मैं बात करूं आपके पास कि थीटा इज इक्वल टू 2π मान ले, तो आप देखो तो डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा. दिस इज 2d5. तो डी थीटा कितना आ जाएगा. दिस इज 2d5 और मैं लिख सकता हूं डी थीटा इज इक्वल टू 2d5. तो यहां से sec phi इज इक्वल टू आ जाएगा so this is the k lambda over 4r into this is -π/4 to +π/4 into k. This is what this is sec phi into d थीटा को लिख सकते हैं दिस इज 2d5. तो यहां से बन जाएगी वैल्यू इज k लैम्डा ओवर 2r into pi. दिस इज द sec phi into d5. नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो एक बार देख लें ई नेट कितना आ जाएगा. तो ई नेट आ जाएगा आपके पास k लैम्डा ओवर 2r इंटू इंटीग्रेशन ओवर sec phi d5 फ्रॉम -π/4 टू +π/4. ओके बच्चों, अगर -π/4 से +π/4 आ जाएगा तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको बन जाएगा k लैम्डा ओवर r इंटू 0 to π/4 sec phi d5. ओके, लिमिट इंटरचेंज कर दी मैंने. और अब देखो ध्यान से तो sec x बराबर का इंटीग्रेशन कितना होता है. दिस इज ln sec phi प्लस tan phi. लिमिट इज 0 to π/4. तो आप ध्यान से देखते हैं दिस इज k लैम्डा ओवर r ln sec π/4 इज 1 एंड √2
sorry, this is root 2 plus 10 pi by 4 is 1 divided by this is 1 sec 0 is 1 plus 0. तो यहां से बन जाएगा दिस इज k lambda over r ln root 2 plus 1. This is your result. तो सच ए इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सम न्यूमेरिकल. सो प्लीज आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देख सकते हो एक बार और कि आपको एक सेक्शन कट किया गया है जिसका डी साइन फाई आपस में बैलेंस किया गया है. अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आया तो प्लीज रिपीट माय वीडियो एंड लेट अस सी अगेन. ओके, so now I want to discuss the next question, and such is also a very good question. So the next question is, there is a semi-infinite hollow cylindrical pipe that is one end extends to infinity with a uniform surface charge density. What is the direction of electric field at a point P at a point A on the circular end face? तो आपके पास क्या है बेटा, इस तरीके का एक सिलेंडर दिया गया है जिसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी क्या है, एक सेमी इनफाइनाइट हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है विद अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसपे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी इस तरीके से इसको चार्ज कर दिया गया है. तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसको ऐसे चार्ज कर दिया गया है सच लाइक दिस, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई है. तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए. ये जो पॉइंट लिया गया है इस पे आपसे पूछा गया है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. सो लेट अस सी द क्वेश्चन. एक बार फिर से देख लो, आपके पास एक सिलेंडर दिया गया है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. आपसे पूछा गया है बच्चों की ए पॉइंट, ये जो पॉइंट ए है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. सो एज वी नो electric field due to complete sphere, complete cylinder at point A is तो ये कितना हो जाएगा 0. आपको अब मैं सिलेंडर बना रहा हूं, तो एक इस तरीके का मान लो बेटा सिलेंडर है जिसका ये पॉइंट लिया गया है, इस तरीके से चार्ज है. तो अगर कंप्लीट सिलेंडर होता तो अगर इनसाइड कोई भी पॉइंट हम लेते तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो कितनी हो जाती, ए पॉइंट पे 0 हो जाती. दैट मीन्स इसकी वजह से इधर की तरफ और इसकी वजह से इधर की तरफ. सो वी कैन से दैट कि अगर ये पार्ट नहीं है सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश आउट हो जाएगी. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी. सो वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. ओके, this is center. Clear? Now the next question is, a simple pendulum has a bob of mass m which carries a charge q on it. Length of the simple pendulum is L. There is a uniform electric field E in the region. Calculate the time period of small oscillations for the simple pendulum about its equilibrium position in following cases. केस फर्स्ट दिया गया है. तो क्या है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं. एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है बेटा. इस सिंपल पेंडुलम का मास m है, चार्ज q है, ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है जिसकी लेंथ l दी गई है. तो आप सबको पता है इसका जो टाइम पीरियड होता है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो दिस इज 2 पाई अंडर रूट ओवर l अपॉन g इफेक्टिव. सो केस फर्स्ट दिया गया है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली डाउन हैविंग अ मैग्नीट्यूड समथिंग लाइक दिस. तो अब क्या हो रहा है, ये सिंपल पेंडुलम है, mg भी नीचे की ओर लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड है जिसकी वजह से एक फोर्स और फील करेगा, ये QE. तो नेट फोर्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा इसके पास, दिस इज mg प्लस QE. दैट मीन्स g इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी यहां पर वो कितनी आ जाएगी, दिस इज g प्लस QE बाई m. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई, mg बाई क्यू दी गई, पुट कर दो तो g प्लस क्यू बाई एम इंटू mg बाई क्यू. तो लेट अस सी, क्यू से क्यू कैंसिल, m से m कैंसिल, सो यहां से g इफेक्टिव कितना आ जाएगा, दिस इज 2g. अगर g इफेक्टिव 2g आ गया बेटा तो हमें टाइम पीरियड जो आ जाएगा यहां से वो कितना आ जाएगा. सो द टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ओवर l अपॉन g इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2g. तो दिस इज द फर्स्ट आंसर. केस बी क्या दिया गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली अप हैविंग अ मैग्नीट्यूड 2mg बाई क्यू. अब क्या है क्वेश्चन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड E जिसकी वैल्यू है 2mg बाई क्यू, जिसकी वजह से एक ऊपर फोर्स लगेगा QE. तो अब जो G इफेक्टिव आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, तो दिस इज QE बाई m
माइनस का g, सो दिस वैल्यू इज e की वैल्यू रखेंगे तो दिस इज q बाई m इंटू 2mg बाई q माइनस g, सो दिस q से q कैंसिल, m से m कैंसिल, so 2g माइनस g इज g, so g इफेक्टिव कितना आ जाएगा बेटा g, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ओवर l बाई g. Now the third case क्या है, the electric field is horizontally having a magnitude is mg by q. तो थर्ड केस इज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये है, सिंपल पेंडुलम में इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटली है, mg इधर की तरफ लग रहा है, तो इधर इस चार्ज q की वजह से इधर एक फोर्स लग जाएगा QE, सो इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट ओवर mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर. सो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, तो जी इफेक्टिव आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर का रूट, तो इसको क्योंकि ई की वैल्यू एम जी बाई क्यू है, so put in here this is g effective is square root of g square plus q square over m square into m square g square by q square. तो q square से q square कैंसिल, m square से m square, this is root 2 g. तो इस केस में g इफेक्टिव आ गया root 2 g, so टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट ओवर l अपॉन root 2 g. Now the next and last case of this question is, so last case is E has a magnitude E equal to Q and it and is directed upward making an angle of 45 degree with the horizontal. अब की क्या हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इससे इस तरीके से एंगल बना रही है, कितना, दिस इज से ये G होगा बेटा, दिस इज G. ओके, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इससे एंगल बना रही, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके का स्ट्रेंथ लिए हुए E इक्वल टू G जो 45 डिग्री पर बना रही है, सो mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो इसकी वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा. मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ, इधर एक फोर्स लगेगा mg और इधर एक लगेगा, सो दिस विल बी 45 डिग्री, और इधर भी आ जाएगा mg और इधर आ जाएगा बेटा आपके पास कितना, mg cos 45, so this is mg cos 45, और इधर भी लग जाएगा, this is mg cos sin 45. तो आप देखो तो mg cos 45 कितना आ जाएगा, this is mg माइनस का mg is mg बाई रूट 2 माइनस mg, एक ये बन जाएगा x एक्सेस में फोर्स और y एक्सेस में फोर्स बन जाएगा, दिस इज mg बाई रूट 2. सो अब जो g इफेक्टिव आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा g बाई रूट 2 माइनस g का होल स्क्वायर प्लस g बाई रूट 2 का होल स्क्वायर. तो इसको ओपन कर सकते हैं, दिस इज जी स्क्वायर बाई 2 प्लस का जी स्क्वायर माइनस 2 जी स्क्वायर बाई रूट 2 एंड प्लस का जी बाई जी स्क्वायर बाई 2. तो जी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी स्क्वायर बाई 2 इज अ 2g स्क्वायर एंड दिस इज 2g स्क्वायर माइनस रूट 2 जी स्क्वायर. तो यहां से वैल्यू बन जाएगी 2 माइनस 1.411 इंटू जी स्क्वायर, दिस इज जी इफेक्टिव का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहां से जी इफेक्टिव जो आपके पास निकल के आता है, दिस इज रूट 2 माइनस 1.41 इज दिस इज से मान लो 10 में गया 9 बचा और 9 में 4 गया 5 बचा और 1 में गया, दिस इज 0.59 जी स्क्वायर का रूट, तो दिस इज 0.59 रूट जी. So time period is 2 pi under root over L upon 0.59 G. Okay, this is the next answer. So this is the important question, and how to the simple pendulum is taken with the electric field vectors. Now the next question is, so this next question is a circular wire loop of a radius a carries a total charge q distributed uniformly over its length. A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. तो बेटा क्या है, आपके पास एक इस तरीके का रिंग दिया गया है,
इसको मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग पढ़ाया तब इस आर्टिकल को कंप्लीट किया था। इस तरीके से चार्ज है, तो आप बस क्या कर सकते हो, डीएल एलिमेंट्री सेक्शन पे कितना चार्ज होगा, बस ये अगर हम निकाल लें इस डीएल एलिमेंट्री सेक्शन पर, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बिल्कुल इसी के सामने लगेगी, दिस इज ई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जनरल वो कितना होता है, दिस इज के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। मतलब ये आपको डी क्यू चाहिए, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, सो डी क्यू हो जाएगा दिस इज क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू dl. So put in here, this is 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon 2 pi r cube into dl, because r square into r is r. So this is q dl over, this is 8 pi square epsilon naught into r cube. Now this is a homework question. Please, I want to read, but you can solve this question and write the answer. Okay, and please send the solutions in my WhatsApp number, again given, this is 8858980568. okay, and this is also a very chocolate problem. जो बच्चा जितनी अच्छे से मेरे को इसका आंसर देगा फाइनली मैं उसको 100% रिवॉर्ड करूंगा. So the question is, two wires AB and CD, each 1 meter length, carry a total charge of 0.2 microcoulomb each and are placed as shown in the figure. The end B and C are separated 1 meter distance. Determine the value of electric field intensity at the midpoint P in terms of a unit vector I cap and J cap. And the one important thing is that यार बच्चों जो नेक्स्ट क्लास है वो बहुत अच्छी क्लास है, क्योंकि उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडीज. अभी तक हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडीज. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडीज, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. Okay, so goodbye, take care, stay safe and stay home.